subglottic stenosis you will be facing in two scenarios. Like one will be that patient will be presenting with some hoarseness or stridor and they want to examine, okay, and proceed, okay. Yes, And sir. one sort of patient will be prolonged intubation and then tracheostomy, okay. And then Yes, sir. when they are trying to decannulate, they are failed because of this tracheal subglottic stenosis, okay. So they are not Yes. getting rid of tracheostomy. We are getting most of cases like post-COVID on mechanical ventilation. They are Yes, reverting yes, back with the subglottic stenosis. yes. We have So been receiving more cases. actually, the main consideration, if you don't have tracheostomy, actually that patient is more tricky, okay, because Yes. you can intraoperatively you can manipulate with the smaller size of tube, inhalational induction, and then visualization of the cord, and then you can have a smaller tube, endotracheal tube, and then they are whatever they want to do the trimming, they want to use laser or whatever they want to do. And the problem is not intraoperative. The problem is postoperative. Okay, in a patient Yes. in which there is no tracheostomy, so that patient Okay. mandates postoperative HDU monitoring for possible airway edema and leading to airway blockade. Okay, so that patient Okay. needs a steroid coverage and some and like this one. Methylprednisolone. Yeah, Methylprednisolone. like steroid and then this So, one, racemic epinephrine. Okay, okay, nebulization sir. Okay. Okay. reduction of the edema. But this patient definitely needs monitoring for possible post-operative edema, and that problem will be even exaggerated if it's a relatively young age group. Okay, so Okay. that problem will Okay. be increased. And then if there is a patient in which there is tracheostomy, then actually the you are on the safer side because your airway is secured. Okay, your airway is not you are not expecting any blockade in the airway in that scenario. Okay, so that makes it a little Yeah. simpler as compared to the patient in which you are having yeah, like you are extubating and then you are sending post operative. The basic care is the same. The basic principle, even if this question is being asked in the exam, the basic principle is that you don't have to give the muscle relaxant till the time you are able to visualize it, number one. And number two, preferably if you even if you are giving, you can have all the airway difficult airway gadgets with you, booties and everything, because you are supposed not to have the proper endotracheal tube. You will be asked to put a smaller size endotracheal tube around which they are doing Yeah. laser. We are kept with 3 and 3.5 that we conjoined, sir. One case we Yes, have and done, sir. actually, the Mm, recommended tube for that one is not the ordinary tube. You are yes. supposed to have microlaryngeal tube, which are longer and short, thinner. Okay, Yes. Yes. because if you are using a normal smaller size in a smaller diameter endotracheal tube, that will not be that long enough to serve the purpose. So ideally, you should have a microlaryngeal tube. Okay, and one thing, and then Yes. other thing, that if they are, because sometimes they are only using the traditional surgical technique, but like in our hospital they are doing laser. So when they are doing laser, you have to tell about the all the laser precaution, because Yes, sir. Airway. This was. will have we will have the chances, all the problems and the possibilities related to airway laser, all the occupational Okay. problems, protection to the patient, protection to the patient, the medical personnel in the OR. Okay, and then you are not supposed to use very high FiO2, and you are not supposed to use nitrous oxide. Even you can Yes. have intermittent apnea technique. If you there is high risk, you should have a protection with the you can use a specialized laser tube with the all the protection. Okay, so Okay. that the consideration because of the laser tube. Okay, so I hope I have answered your question, right? Yes, sir. Okay, तो Thank you. Thank you, sir. एक्चुअली जो टॉपिक आज मैं करना चाह रहा हूँ ना, उसमें सबसे पहले अभी लोग कम आए हैं। अतीक भाई आए थे और गायब हो गए। नहीं, अतीक भाई बताइए कि इंट्यूबेशन की क्या इंडिकेशन होगी?
सर एक तो सर जो हम नॉर्मल सर्जरी के लिए इस्तेमाल करते होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन लंग्स एंड जो ओके आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर वन। और दूसरा ये है कि इसके कुछ वो पैरामीटर्स हैं जो हम आरटीसी में इस्तेमाल करते होते हैं, जैसे कि PaCO2 मोर देन 60 हो जाए, और पी अच्छा इसकी और आप इसकी थोड़ी सी बेहतर क्लासिफिकेशन करें कि एक इलेक्टिव है और एक इमरजेंसी है, ठीक है? एक इलेक्टिव है, एक इलेक्टिव है और एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी है, ठीक है, एक तो बात हो गई। दूसरी बात ये कि एक आपकी कोई लाइक को एग्जिस्टिंग जो मतलब कंडीशन है उसके अंदर आप उसके अंदर कोई मतलब लाइक कि सपोर्ट की जरूरत है, उसके अंदर आप इंटुबेशन कर रहे हैं, और आप एक जो एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से एक पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए इंटुबेशन कर रहे हैं, वो तो एक सेपरेट कहानी है। वो इट इज नॉट कम इन इट। इलेक्टिव इंटुबेशन इन अ नॉर्मल पेशेंट भी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे एक न्यूरोसर्जिकल पेशेंट है, एक पेशेंट जिसको एयरवे एडिमा आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उस टाइम पे इमरजेंसी नहीं है बट यू आर एक्सपेक्टिंग एन इमरजेंसी, ठीक है? जी सर। फिर उसके इसमें बाद सर आप कुछ उसके इसमें सर जो पैरामीटर्स, अब आप उसमें कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, जो बेसिक पैरामीटर्स बताइए आप। बेसिक पैरामीटर, व्हेन वुड यू लाइक टू इंट्यूबेट द पेशेंट? जो उसके सर जो मैकेनिकल आपने जो बताने हैं ना, अब आपने एग्जैक्टली बताने हैं मैकेनिकल पैरामीटर्स, और आपने जो ब्लड गैसेस के पैरामीटर है, दोनों बताने हैं। अच्छा सर, जो मैकेनिकल पैरामीटर्स हैं उसमें हम सर एक तो अगर हमें इनहेलेशन इंजरी वगैरह हो जाए कोई, ये या मैकेनिकल कोई पैरामीटर्स नहीं है अतीक भाई। inadequate oxygenation and inadequate ventilation. No, Like no, no. This that. is a mechanical parameter. Be specific. Mechanical parameters. Okay. What are the mechanical parameters for which you would need to intubate the patient? जी अतीक भाई सोचे दोबारा से। अच्छा सर, इस एक में तो सर जो इंट्यूबेशन करते होते हैं सर ना, उसमें सर मैं मोटा बता देता हूँ, बाद में सर इसको में भी हम क्लासिफाई कर लेंगे, ठीक है सर। एक तो सर जब हम जीसीएस कम हो, जीसीएस लेस देन 8 हो। आप मेरे सवाल को समझ ही नहीं रहे सर क्योंकि वो आप अगर आप मैं आपको इसलिए एग्जाम में आप ये बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये बात अच्छा मेरा क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा तो आप वहां पे बोलेंगे भी नहीं। मैकेनिकल इंडिकेशंस कौन सी होती हैं अच्छा यार? या तो नेगेटिव इंस्पिरेटरी प्रेशर नहीं आ रहा, या वाइटल कैपेसिटी नहीं आ सर रही सर है। सर बताता हूँ सर। सर आपका रेस्पिरेटरी टाइप 1 फेलियर, रेस्पिरेटरी टाइप 2 फेलियर, इसके अलावा जो आपका सर पल्मोनरी एडिमा है, इसके अलावा सर आपका जो है सर फॉरेन बॉडी वगैरह कोई हो, ठीक है सर। इसके अलावा सर आपका जो रेस्पिरेटरी जो आफ्टर पोस्ट सर्जरी रेस्पिरेटरी जो क्या कहते हैं सर, कोलैप्स हो, और इसके अलावा सर आपका जो एडिमा हो सर, जो एनाफिलेक्टिक इसमें मैकेनिकल शॉक। पैरामीटर्स अगर आपको बताने हो ना, तो सबसे पहला मैकेनिकल पैरामीटर होता है वाइटल कैपेसिटी। आपने देखा नहीं है मुख्तलिफ कंडीशन में हम कहते हैं कि अगर इससे लेस वाइटल कैपेसिटी हो गई तो इसका मतलब है कि इंडिकेशन ऑफ इंटुबेशन। इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है जीबी सिंड्रोम में, इसकी एग्जांपल है माइस्थीनिया ग्रेविस में, या कोई भी मसल वीकनेस में, ठीक है, जिसमें अगर वाइटल कैपेसिटी एक सर्टेन लेवल से कम हो गई है तो यू हैव टू, ठीक है। मैकेनिकल पैरामीटर में ये बात है, और बाकी गैस आप बाकी कंडीशन सही बता रहे हो, मैं आपको सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ये मिस ना करें। बाकी जो जीसीएस की है और जो ब्लड गैस की है वो तो आप बता ही देंगे कि PO2 कम हो गई है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गई है। उसके बाद जो है आपकी PFR के कोई क्राइटेरिया होगा, वो भी मैकेनिकल में, वो भी मैकेनिकल में आएगा, वो भी मैकेनिक्स में आएगा सर। वो जो सर कौन सा क्राइटेरिया समझ नहीं है सर। यार। वो जो नहीं होता आपका PFR, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, जी सर, जी सर। उसके हिसाब से भी नहीं इंट्यूबेशन होगा, उससे होगा सर, बिल्कुल होगा सर। ठीक है। आप लोगों को मेरा सवाल समझ आ रहा है ना? जब कोई इस आंसर को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेगा। अच्छा सर, मैं और एक इसमें सर रेस्पिरेटरी रेट वाला बताऊं सर, जो आपका दूसरी बार है। जी जी। एक इसका होगा सर, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 35 है, और वाटर कैपेसिटी जो है लेस देन 5 ml पर kg, और इसके अलावा जो है लेस देन 5 ml तो बहुत थोड़ा हो गया, ये तो टाइटल वॉल्यूम की उसमें आ गया। 10 ml है मेरे ख्याल, 15 ml पर kg से कम है। अच्छा सर,
तो इसके अलावा Any सर number? जो एबीजीज जो है ना वो इसका एसिडोसिस है 7.1 से, और PaO2 लेस देन 50 है, और PaCO2 मोर देन 60 है सर। उसमें सर वी विल गो फॉर, और इसके अलावा सर कोई इनहेलेशन इंजरी है, बर्न इंजरी है, इसके अलावा सर ये कुछ चीज़ें बताइए सर। ठीक है, मतलब आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ गया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कहने को ये यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको बहुत सारी चीजों के अंदर आपको ये क्लिक कर सकता है माइंड में कि कोई भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है। अब जैसे देखे ना, आपके दिमाग में वाइटल कैपेसिटी नहीं थी, आपके दिमाग में PFR नहीं था, आपने GCS तो आपको नहीं भूलेगा, GCS तो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगर जो मैयर किया जाता है, वैसे तो ये इन उसमें आएगा, लेकिन आपकी जो है वो अगर नॉन इन्वेसिव जो है वो तरीका फेल हो गया, ठीक है, आपने नॉन इन्वेसिव से किया है और यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द रिजल्ट्स, ठीक है। और जो हम लोग जो एस्थमा के रेफरेंस से कौन सी चीज होती है जब आपने इंट्यूबेट करना होता है? सर वो साइलेंट चेस्ट है, ठीक है, या उससे पिछली स्टेज है, उसमें भी आप कर सकते हैं कि पेशेंट फटीग हो रहा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो मतलब लाइक एक सर आपने क्या बताया, एस्मा की कौन सी स्टेज में करेंगे इंट्यूबेट? जी आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से बोलें। मैंने बोला है ना कि जो मैंने कहा ऐसी सर कंडीशन आ आप क्या जाएगी, कह रहे थे, एस्मा में कब इंट्यूबेट करेंगे? देखें एस्थमा की दो कंडीशंस होती है, एक होता है लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा, उसमें भी आप इंट्यूबेट करेंगे, और जो उससे एक्यूट सीवियर एस्थमा है, अगर उसके अंदर भी पेशेंट फटीग की तरफ जा रहा है तो आप इंट्यूबेट कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि उसका उसकी हेडिंग है इम्पेंडिंग रिस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। जो बोलना नहीं है मुस्तफा आ जाओ। इम्पेंडिंग रिस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, इम्पेंडिंग रिस्पिरेटरी फेलियर। अच्छा उसके बाद अब आप मुझे ये बताएं कि जो है वो आपका इंटुबेशन की फिजियोलॉजिकल क्या, ये हम लोगों ने मेरे ख्याल पिछले सेशन में डिस्कस किया था, लेकिन इंटुबेशन की फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? सर एक तो आपका सर जो डेड स्पेस है वो 150 तक इसका डेड स्पेस आपका बढ़ जाता है, और इसके अलावा सर इंट्यूबेशन में सिक्रीशंस वगैरह आती हैं, और सर आपका जो वो आपने है पहले ही जो जवाब बोला है ना, वो मेरे से हजम नहीं हो रहा। अच्छा उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए सर, कौन सा वाला जो इसकी बात कर रहे हैं? देखें इंटुबेट, आपने एक पेशेंट को इंटुबेट कर दिया, अब उसका क्या इफेक्ट होगा बॉडी पे? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटुबेशन का स्ट्रेस नहीं होगा? इंट्यूबेशन का स्ट्रेस इफेक्ट होगा इंट्यूबेशन का। इसके अलावा सर वो भी है, आपने सिक्रीशंस ड्राई होंगी, स्ट्रेस इफेक्ट्स होगा। सिक्रीशंस कैसे ड्राई होंगी सर? क्योंकि जब आप वो इंट्यूबेशन करते होते हैं, इसके बाद जो वो है वो बाईपास हो जाता है ना सर नोज से। तो अगर आप इस जुमला, ये जुमला आपका इनकम्प्लीट है कि अगर आप मॉइस्ट गैसेस नहीं दे रहे, क्योंकि आइडियली तो मॉइस्ट गैसेस देनी चाहिए ना। जी सर, इफ यू आर नॉट यूजिंग मॉइस्ट गैसेस देन आर्टिफिशियल जो हमारा नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्टनिंग है वो आपने खत्म कर दिया है। तो प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन के अंदर उसके अंदर आपको ये ज्यादा उसके इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इंट्राऑपरेटिवली इसका क्या इफेक्ट होता है? इंटरऑपरेटिवली सर इसका सर जो ऐसे पेशेंट्स के जो एट रिस्क होते हैं एयरवे प्रॉब्लम्स के, उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम रिफ्लेक्स आएगा। दूसरे, इट इज पार्ट ऑफ इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस, ठीक है। जो इनसेंसिबल, इसके अलावा सर इसका ब्रोंकोस्पाज्म इन व्हेन टचिंग द कराइना सर।
हाँ जी, तो cause ये of- सारे बताएंगे ना आप तो पता नहीं कौन सा आपने पहला ही जो बोला है ना वो मुझे से हजम नहीं हो सका। आपने इंटुबेशन का रिफ्लेक्स नहीं बताया, आपने इंजरी नहीं बताई, आपने जो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे आ गए हैं। एक पेशेंट जो हीमोडायनेमिक जो अनस्टेबल है उसमें जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करेंगे तो उसके हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे? सर इसको ऐसे भी डिवाइड कर आएंगे सकते हैं ना सर। उनके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन विद कार्डियोवैस्कुलर और सीएनएस में कॉम्प्लिकेशन के साथ, बिल्कुल इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये मैं सब लोगों को कहता हूं कि इस किस्म का जो आंसर होता है ना ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरीके से है कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इसी तरह का एक ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं कई दफा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, हाउ टू इवेलुएट अ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन आईसीयू। ये मेरे से एफसीपीएस पार्ट 2 के वाइवे में पूछा गया था, हाउ टू इवेलुएट द कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि अच्छा ये जो दूसरी बात ये कि जो ये क्लासिफिकेशंस होती है ना कि आप क्लासिफाई कह रहे हैं कि मैं उस तरह क्लासिफाई कर लूंगा जी। एक मिनट, असल में यहाँ मेरा बेटा भी आया है और उस फॉर सम रीजन मुझे हंसी आनी शुरू हो गई है, जस्ट गिव मी अ पॉज। अच्छा हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पर एग्जाम में आपको क्लासिफाई बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि वी आर वेस्टिंग टाइम। एग्जामिनर को इस चीज से सरोकार नहीं है कि आप उसको क्लासिफाई करके बता रहे हैं, ही इज लिसनिंग टू यू वट एवर यू आर सेइंग, ठीक है। तो ये चीज आपकी हेल्प करने के लिए होती है, क्योंकि कई दफा जब आप क्लासिफाई, अक्सर लोगों को ही बताया जाता है ना हेड टू टो करें, या कई लोगों को बताया जाता है कि प्री ऑप, इंटर ऑप, पोस्ट ऑप बताएं, वो बोले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बोले, लेकिन आप जो वाइवे में लोग ओवरडू कर जाते हैं इस चीज को, तो आप लोगों ने ओवरडू नहीं करना, ठीक है। समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा तो ये आपने इंटुबेशन आपने की प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, उसके इफेक्ट्स बता दिए। अच्छा अब हम वी आर जंपिंग टू द टॉपिक ऑफ वीनिंग, ठीक है। तो वीनिंग कब आप करते हैं, वीनिंग का क्या मतलब होता है? वीनिंग का मतलब है कि लिबरेशन फ्रॉम दी वेंटिलेशन, ओके फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन, और आप और जो आप उसको ये एक्सट्यूबेशन कर देते हैं सर। और पेशेंट जो है नॉर्मली ऑक्सीजन पे होता है, जिसमें पहले सर नॉन रिपीटर पे लगाते हैं, फिर इसके बाद मतलब जो प्रोसेस बता रहा हूँ सर वैसे, ठीक है। जो फिर और वो इसके बाद जो है ना रेडीनेस फिर टेस्टिंग होती है बेसिकली, रेडीनेस टेस्टिंग करते हैं जिसमें कि हम एबीजीज देखते हैं, पेशेंट का जीसीएस लेवल देखते हैं और रैपिड शैलो ब्रीथिंग इंडेक्स को मेजर करेंगे, और फिर कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि इंस्पायरेटरी प्रेशर है, जैसे टाइटल वॉल्यूम में। उसमें आपके वो आपके सब क्या अब क्या चीजें हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर व्हेन इसमें वुड यू लाइक टू वीन ऑफ द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर? सर आप पेशेंट जो है वो सर हमारे मिनिमल स्टैटिस्टिक में सपोर्ट पे हो, मिनिमल FiO2 पे 40% पे। इससे और भी पहले आंसर में आपका एक और बेसिक चीज ये है कि जिस पर्पज के क्लिनिकल लिए सर, आपने क्लिनिकल नहीं जिस पेशेंट पर्पज के लिए आपने उसको इंटुबेट किया था, जिस जी पर्पज के वो लिए आप रिजॉल्व हो गया। वेंटिलेट कर रहे थे वो जी रिजॉल्व हो गया, ठीक जी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद ये कि आपने कोई ऐसी जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स थी, वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स जी आपने बंद कर दी हैं, जिनका यानी कि बंद कर दी हैं या उनका हैंगओवर नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल। अगर एक ऐसी दवाई है कि जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स उसके मौजूद हैं, रीनल फेलियर में था, आपने उसको बहुत ज़्यादा उसको फैंटानिल दिया है और आपने उसको कोई भी ऐसी दवाई दी है जिसकी रीनल क्लियरेंस है और अभी तक जी वो है ब्लड के अंदर मौजूद, ठीक है, या उसकी जो प्राइमरी कंडीशन है वही अभी सेटल नहीं हुई है, तो यू विल नॉट ट्राई टू वीन ऑफ, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसके जो आप क्राइटेरिया बता रहे थे उसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे? तो सर एक तो पहले रैपिड क्लिनिकल, शैलो ब्रीथिंग इंडेक्स होती है, वो करते हैं, ब्रीदिंग पर मिनट डिवाइड बाय टाइटल वॉल्यूम, एक तो ये ओके करते हैं हम। और और दूसरा जो है वो एबीजीज के थ्रू हम देखेंगे, और जो मैकेनिकल वेंटिलेशन हो मिनिमल सपोर्ट पे हो, जिसमें FiO2 लाइक मिनिमल हो, FiO2 40% हो, और पी भी लेस देन 5 हो। और इसके अलावा जो है वो पेशेंट जो है वो सीएनएस के तौर पे हम देखेंगे कि जो
रास स्कोरिंग है वो हम चेक करेंगे उसकी। और इसके अलावा जो है कौन सी वो स्कोरिंग, कौन सी स्कोरिंग? जो रिस्पॉन्ड एजुटेशन स्कोर जो होता है, ओके, RASS, जी सर। ठीक है। और इसके अलावा जो है कोई आइनोट्रॉप या कोई ऐसी ड्रग्स पे ना हो जो कि सपोर्ट कर रहा हो हेमोडायनेमिक। देखें, अब आप ना ये इस आंसर को आप थोड़ा सा बेहतर प्रोग्राम करने की जरूरत है। वो प्रोग्राम करने की सर जरूरत है मैं कि बता दूं सर जिशान? जी जी बताइए। अच्छा सर, इसको हम वी विल डिवाइड टू टू उसमें डिवाइड करेंगे। एक तो सर क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करेंगे। जो क्लिनिकल असेसमेंट है उसमें हम वी विल सी के जो प्राइमरी पैथोलॉजी रिजॉल्व हुई है कि नहीं हुई। एक दूसरा हम ये चेक करेंगे कि इसके सिक्रीशन आ रही है या नहीं आ रही है, मतलब पेशेंट जो है ना वो इसकी पैरामीटर्स ठीक है या ठीक नहीं है। तीसरा सर ये है कि इसको अगर वो कफ कर रहा है, बकिंग कर रहा है, कफ कर रहा है और बाज़ औक़ात आईटीसी के अंदर वो आपको इशारे भी कर रहा होता है सर, ठीक है, तो और पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है और उससे कहेंगे ज़रा सब्र करें तो वो आपको इशारों से बता देता है कि मैं ठीक हूँ और पेशेंट की ऑक्सीजन ठीक चल रही है। तीसरा ऑब्जेक्टिवली हम जिस तरह आसिफ भाई ने बताया, ऑब्जेक्टिवली हम हेमोडायनेमिकली स्टेबल है पेशेंट, एक। दूसरा ये कि इसके विज़ प्रेशर पे नहीं है, दो। तीसरा ये कि PA2 FiO2 जो है ना वो मोर देन 200 है। और चौथा ये कि FiO2 जो है ना उसके रेशो पे लेस देन 0.5 पे हो या 0.4 पे हो, और पीप जो है ना मिनिमल, जितनी मिनिमल हो सकती हो पीप, ठीक है। अगर सर ये चीज़ें हम चेक करेंगे और जो रैपिड ब्रीदिंग इंडेक्स है वो भी चेक कर सकते हैं। देखें इसके अंदर अब आपने भी जो बताया है ना, इसके अंदर भी आपने सब मिक्सअप कर दिया है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप बोलने को वहाँ बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन अगर आप वहाँ पर आपके दिमाग में होगा कि कुछ मैकेनिकल चीज़ें हैं, कुछ केमिकल चीज़ें हैं। अब ज़रा सा सोचें ज़रा कि मैकेनिकल चीज़ों के अंदर फिर वही वाली बात जो इंडिकेशन में थी, जो इंट्यूबेशन में थी, वही वाली बातें यहाँ पे आप बोलेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जो मैकेनिकल जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो मिनट वेंटिलेशन है, वो आपने नहीं बोला है। मिनट वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मिनट वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है पेशेंट बहुत ज़्यादा टेकिप्निक हो रहा है। उस सूरत में आप उसको एक्सट्यूबेट नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी वाइटल कैपेसिटी एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा होनी चाहिए। वाइटल कैपेसिटी भी उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी पैटर्न, अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम है या रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी आप नहीं करेंगे, ठीक है? उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं, एक इंस्पिरेटरी एफर्ट होती है और एक एक्सपिरेटरी एफर्ट होती है, ठीक है? ये इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन-सी होती है? इंस्पिरेटरी सर, इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी? इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी। इंस्पिरेटरी, हाँ? इंस्पिरेटरी सर, जो शुड बी लेस इंस्पिरेटरी देन प्रेशर होगा ना सर, लेस इंस्पिरेटरी होता है, देन -25 सेंटीमीटर। ठीक है? 20 इंस्पिरेटरी होता है। इंस्पिरेटरी होता है, ठीक है? और उसके बाद आप दूसरे पे आ जाएँ, जो है ना वो आपने एक जो पीएफ रेशियो बताया है, PaO2 बताया है, PCO2 बताया है, वो सब आप बता देंगे। वो आपके बायोकेमिकल में कहने आ जाएगी। जो मैकेनिकल चीज़ें हैं वो बता दी, आपने जो उसकी कंडीशन है वो बता दी, कोई दवाइयों का इफ़ेक्ट वो बता दिया, कोई हीमोडायनामिक या कोई हैंगओवर नहीं है उसका, ठीक है? तो ये वो उसका तो मीनिंग। उसको तो हम सिस्टमैटिकली भी तो डिवाइड कर सकते हैं कि सिस्टम वाइज आप बताएंगे जीसीएस इतना हो, जैसे सीएनएस पे आगे, फिर हार्ट पे आगे, देखिए फिर मैं इस फिर तरह लंग्स हाँ, पे वो आगे। बिल्कुल आप बताएँ, लेकिन मैं अभी जो दोबारा मैंने पहले बोला था, मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी हेल्प के लिए होनी चाहिए, आप वहाँ पर ओवरडू ना कर जाएँ। क्योंकि वहाँ पर आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको पहले बतानी है। अगर कोई आप ऐसा सिस्टम या कोई ऐसी बात बतानी शुरू कर गई जो लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब जैसे आसिम भाई ने जो बताया है ना रैस, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई गलत बात बताई है उन्होंने, लेकिन अगर आपने वहाँ पर एग्जामिनर को मैकेनिकल पैरामीटर्स या बायोकेमिकल पैरामीटर से पहले आपने ये चीज़ बता दी ना, रिचमैन एजिटेशन सेडेशन स्कोर, तो वो उस बात पे खुश नहीं होगा। हाँ, आपने बाकी चीज़ें बता दी हैं, उसके बाद आप रास बता देना तो वो इट विल बी अ प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आपने उससे पहले बता दिया ना तो तरतीब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एग्जामिनर जो है वो अपने न्यूरॉन्स को ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि तरतीब से जो लिखा हुआ है ना वो उसी तरह ही बताता जाए, ठीक है? और वो दे विल नॉट स्टॉप यू, आई गारंटी यू। अगर आप तरतीब से बता रहे हैं, तरतीब के देखें, मैं पिछले भी सेशन में जब हम बात करते थे तो वो हमारी नुसरत बाजी एक होती थी, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि वो
अनकॉमन चीज पहले बता। अब आपने अतीक भाई जिस तरह बताया ना कि पेशेंट हाथ से इशारा कर देगा, ये सब बातें गैर जरूरी है। ये बातें आपको वाइवे में बताने की कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से, ठीक है। आप टू द पॉइंट रहे। मैकेनिकल बातें जो आपने पहले बातें बताई थी वो ठीक थी। जो रास वाली बात है आसिम भाई एंड पे बताइएगा, ठीक है। अब हमने ये कह दिया कि ऐसे हो गई। अब आप मुझे बताएं कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर फेलियर ऑफ वीनिंग। सर इसमें कार्डिक कॉजेज हैं, रेस्पिरेटरी कॉजेज है, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर कॉजेज हैं और न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं। जो रेस्पिरेटरी कॉजेज हैं इसमें सर आपके मतलब इन रेस्पिरेटरी फ्लो है आपका, इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज्म वगैरह हो सकता है, इसके अलावा थिक सिक्रीशंस और नमोनिया हो, पल्मोनरी एडिमा हो, निमोथोरिक्स हो, प्लूरल फ्यूजन हो, इसके अलावा सर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये शॉक वगैरह में पेशेंट ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो सर ये वीन ऑफ के लिए नहीं, जब तक ये होंगे वीन ऑफ नहीं हो सकता। इसके अलावा सर कार्डिक में आपका इस्केमिक हार्ट डिजीज हो, वल्वुलर हार्ट डिजीज हो, डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर हो सर, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक डिसफंक्शन हो, और न्यूरोमस्कुलर में सर हमारे पास होगा सर कोई हमने बहुत सारा मेडिकेशन दी हो, सेडेटिव, और या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, अल्कलोसिस हो, या पेशेंट जो है ना वो हेड इंजरी के साथ आया हो, ब्रेन एक स्टेम। मिनट, अगर मैं मिस नहीं कर गया तो आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ये बताया है कि जो सेडेशन की मेडिसिन विच यू आर गिविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ फेलियर टू वीन। सर ये सर बताया है सर, ये इसमें बताया सर कि आपके सर हिप्नोटिक और सेडेटिव मेडिकेशन दे रहे हैं सर। अच्छा, इसके अलावा सर, इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर में आपके पास आएगा सर मिस्थीनिया है, बोटिलिज्म आपने है। इलेक्ट्रोलाइट्स बोला है? बोला है सर, बोला है। क्योंकि आपने मेरा ख्याल है मैं मिस कर गया हूँ, या शायद आपने उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस देके नहीं बोला। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स तो सर बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने सर। उसको इतना हाईलाइट करके नहीं बोला। अच्छा आपने सर, कहीं दरमियान में कहीं बोल दिया है, क्योंकि बाकी चीजें जो आप बता रहे हैं ना वो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लिस्ट बताते जाएं, लेकिन जब तक आप अब फेलियर टू वीन ऑफ के अंदर वो आपको जो देखना चाह रहा है ना कि ना आपने कोई ऐसी दवाई है जिसका जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा था कि वो फैट के अंदर गई भी है और अब वो एक्सक्रीट नहीं हो रही, इस वजह से दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज। एक्चुअली प्रैक्टिकली भी यही कॉज है। और दूसरी जो चीज़ें होती है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है। इसके अलावा सर क्रिटिकल इलनेस में ये देखिए ना, है। ये आप नहीं बोलेंगे और उसके अलावा जो कहानियां सुनाएंगे तो वो फेलियर टू वीन ऑफ में तो दुनिया की हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं बताई। और वो चीज़ें कि जो आपका सिर्फ क्योंकि वो आप एक सिस्टम के तहत बताना चाह रहे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम के तहत ये आंसर सही भी हो। सही मेरी बात समझ रहे हैं? तो सही इसके अंदर फेलियर टू वीन ऑफ के अंदर जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं कि एक तो ये कि जो उसकी प्राइमरी कंडीशन है वो ही लिंगर ऑन कर रही है, सो दैट इज़ अ फेलियर, दैट इज आल्सो ट्राइंग टू वीन ऑफ। ये जो प्राइमरी कंडीशन है वो नहीं उसकी सेटल हो रही है जिसकी वजह से वो हो रही है। फिर आपने जो सिडेशन और पैरालिसिस या उसको जो पेशेंट को नॉक डाउन करने के लिए वेंटिलेटर के लिए आपने जो दवाइयाँ दी हैं उनका जो है वो एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही, ठीक है। तीसरी आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कह दें, उसके बाद आप दुनिया जहान की सारी बातें बोल दें, सेंट्रल कॉज, कार्डिक कॉज, रेस्पिरेटरी कॉज, जो मर्जी कहना है कह दे, सब कुछ उसमें शामिल होगा, ठीक है। उसकी को एग्जिस्टिंग उसकी रिस्पिरेटरी डिजीज थी, वो उसकी वेंटिलेशन की जरूरत, वो उसकी नीड, वो रीजन फॉर एडमिशन टू आईसीयू नहीं थी, लेकिन अब उसकी वजह से वो नहीं उठ पा रहा वेंटिलेटर से, ठीक है इसके ना। अलावा सर इसके अलावा सर डिलीरियम है सर, डिप्रेशन, और ये भी सर वीना पे कर। इसके अलावा न्यूट्रिशन में सर हमारे पास, मेरी बात सुने, जब आपसे ये सवाल पूछेंगे ना वाइवे में, बाकी लोगों को तो लिस्ट याद करने की इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है यार। ठीक है वहां पर सर। आपसे जब सवाल पूछेंगे तो आप मुझे बताइए कि आपको कोई 75 चीजें वो आपसे सुनना चाह रहे हैं यार, ऐसे सर ना बस करें। मैंने बंद कर दी है सर। नहीं तो क्यों, देखिए ना आप वही गलती बार बार कर रहे हैं और मुझे परेशानी शुरू हो जाती है। आपको मैं ठीक इतना है समझा रहा हूँ, ये सारे प्लीज आसिम भाई, आप भी, शमूना आप भी, आप सब लोग जो वाइवे के लिए जा रहे हैं, जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनके लिए लिस्ट है ये, जो वाइवे में आपको पता है 4-5 बातें बताएंगे वो आगे चल पड़ेगा। वो अगला क्वेश्चन, उनको उनके पास इतना थोड़ी टाइम है कि वो पूरी राम कहानी सुनना चाह रहे हैं आपसे। आपने 4-5 चीजें बता दी, दे विल गो मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहाँ जब तक आप नहीं करेंगे वो और करता रहेगा, कहेंगे एग्जामिनर राजी नहीं हो रहा था, मैंने तो पूरा चार्ट सुना दिया था।
मैंने तो मॉर्गन का और मिलर का पूरा चार्ट सुना दिया था, वो फिर भी और कर रहा था। वो वजह ये होती है कि आप जो इंपॉर्टेंट बात है वो नहीं बता रहे होते। जब तक आप लोग इंपॉर्टेंट बात नहीं बताएंगे वो और करता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज आपके लिए हराम है अतीक भाई। कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं जिनसे मसल वीकनेस होती है, जल्दी से बताएं। सर हाइपरकलीमिया और हाइपरमैग्नेसीमिया या हाइपोमैग्नेसीमिया सर। ओके, और कैल्शियम। अच्छा, अब आप अलग अलग बताते जाए। न्यूरोलॉजिकल कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉमन आईसीयू के अंदर? न्यूरोलॉजिकल सर जो ये तो सर हेड इंजरी वगैरह हो गई सर, और इसके अलावा सर हमें मतलब जीबीएस हो गया, मैस्थीनिया ग्रेविस हो गया, इसके अलावा बोtulism हो गया, वो जो पहले बताया था मैंने सर, क्रिटिकल न्यूरोपैथी, माल न्यूट्रिशन वगैरह के साथ जो होती है। इसके अलावा सर हो गया। हाइपोफॉस्फेटीमिया हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो इसके अंदर ना गया। मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये 3 है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंडोक्राइन कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वीनिंग में डिले हो सकती है? हाइपोथायराइडिज्म सर। वेरी गुड, हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद जो आप हेड इंजरी बोला है ना, तो हेड इंजरी तो देखिए बहुत स्पेसिफिक पेशेंट होंगे, लेकिन न्यूरोलॉजिकल इंजरी जो है वो ज्यादा बेहतर वर्ड है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर न्यूरोलॉजिकल इंजरी हो गई है तो उसके अंदर जो है ना वो चांसेस होंगे। ठीक है, अब अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्लीज? अतीक भाई आपको गलती समझ आ गई है ना? जी सर मैं वही गलतियां फिर कर रहा हूँ सर। 4-5 बात, हर सवाल के जवाब में आपके 4-5 जवाब आने चाहिए बस। ये बाकी ठीक है सर, मैं जो है ना, ये जो जूनियर्स हैं ये कचरा बताएंगे वो, क्योंकि उनको एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है। आपने टू द पॉइंट बात जवाब देना है। ठीक है, ठीक है अच्छा, सर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो होता है कि कब आप कौन से पैरामीटर्स पे आप कहेंगे कि भाई ये फेलियर हो रहा है आपका, क्या नाम है इसका, आप पेशेंट को क्रिटिकली देख रहे हैं। अच्छा, पहले इससे पहले दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट वेज टू डू वीनिंग। अब आपने प्रिपेयर कर लिया पेशेंट, अब आप चाहते हैं कि उसकी वीनिंग करें। पेशेंट वेंटिलेटर पे था, अब आप चाहते हैं कि उसकी वीनिंग करें, तो हाउ विल यू प्रोग्राम इट? क्या क्या स्टेप्स आप करेंगे? सर सबसे पहले तो सर जो आसिम भाई बता रहे थे, रैपिड शैलो ब्रीदिंग इंडेक्स भी चेक करेंगे। इसके अलावा सर हम राइट फ्रॉम वो दी सब कर लिया, मॉर्निंग वो हम बाकी मॉर्निंग करते हैं। मॉर्निंग अब मॉर्निंग में आपने प्लान प्लान करेंगे। करना है कि भाई अगर मॉर्निंग किसी पेशेंट को आपने कल, हाँ, पहली बात यह है कि यूजुअली वीनिंग ट्रायल्स आर गिवन इन द मॉर्निंग में सर इसको सबसे पहले इसको आप वो करेंगे कि सेडेशन स्टॉप करेंगे, और वो जो ड्रग्स है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स है, वो हम स्टॉप करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम जो इसके लिए जितनी ज्यादा भी बेहतर आंसर ये है, you will make the patient comfortable and you will try to stop the sedative agent which are depressing the respiration. ठीक है सर। आप देखें ना, अगर पेशेंट को बिल्कुल अवेक कर देंगे तो वो तो ट्यूब के साथ वो उसका हीमोडायनेमिक स्ट्रेस रिस्पांस बहुत ज्यादा आएगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि sedative agent you will try to convert it into dexmedetomidine. If you are giving along, अगर आप उसको फेंटानिल की इन्फ्यूजन दे रहे हैं या उसको आप मिडाजोलैम की इन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे प्रोपोफोल का इन्फ्यूजन में या डेक्समेडिटोमेडिन की इन्फ्यूजन में, क्योंकि मिडाजोलैम और फेंटानिल का ज्यादा हैंगओवर होगा एज कंपेयर टू डेक्समेडिटोमेडिन एंड प्रोपोफोल। एम आई राइट? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर जी। अच्छा सर, फिर इसके बाद सर मॉर्निंग में सर हम वो कर लेंगे। और सर जो हमारे पास बिफोर एक्सट्यूबेशन या जो बिफोर वीनिंग हमारे पास पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें क्रैश ट्रॉली और इंट्यूबेशन का सामान पड़ा होना चाहिए। और इसको हम सर पहले इसमें रखेंगे स्पॉन्टेनियस मोड पे, पहले प्रेशर सपोर्ट पे लगाएंगे, फिर इसके बाद स्पॉन्टेनियस मोड पे लगाएंगे, इसके बाद टीपीस पे रखेंगे। टीपीस के बाद जो है ना सर, इसको हम रिपीटर पे लगाएंगे और हम साथ बैठेंगे। इसके बाद तकरीबन घंटा तक बैठेंगे ताकि पेशेंट जो है ना वो डिसाइड कर जाए। अगर वो पेशेंट रूम एयर पे डिसाइड कर रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग नहीं है, देन इसका मतलब है कि वीनिंग ठीक हुई है।
इससे भी पहले आप ये बता सकते हैं कि जो प्रीसीडिंग डेज होंगे उसमें आप उसको SIMV जो है ना वो मोड पे कन्वर्ट करेंगे। सही है अगर सर, वो सही किसी और प्रेशर कंट्रोल मोड पे है या एनी अदर मोड पे है तो सिंक्रोनाइज्ड मोड पे लाएंगे और उसकी सिडेशन उसकी जो क्या कहते हैं कि सिडेशन ब्रेक्स करेंगे। ठीक है सर। ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये SIMV मोड जो है ना, ये इसको ना वीनिंग को बढ़ाता है, वीनिंग को मतलब हैजर्ड है, मतलब इसकी वीनिंग का हैजर्ड है सर। ये प्रेशर सपोर्ट इज द राइट मोड सर। पता नहीं सर बाकी जो नहीं ना देखिए बड़ी बड़ी SIMV प्लस प्रेशर सपोर्ट होता है। अच्छा देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस किस्म की जो चीजें होती है ना जो रिसर्च में होती हैं, जो रिसर्च आर्टिकल में लिखी होती हैं वो क्योंकि इसका कोई फिक्स मोड तो है नहीं, देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट, आप उसको किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है सही है सर। वो उसके अंदर आप लोग ये कहते हैं कि अर्ली जो है वो आपको ग्रेजुअली ओवर फ्यू डेज आपने ये काम करना है। ठीक है उसके बाद दूसरी बात ये है कि आप जो बता रहे हैं ये हो सकता है कहीं पे हो डिले करता हो, लेकिन ये है कि यूजुअली जो है ना SIMV और प्रेशर सपोर्ट कंबाइंड होता है। ठीक है ना, SIMV विद प्रेशर सपोर्ट होता है ताकि ग्रेजुअली आप उसका SIMV का रेट कम करते हैं। ठीक है और उसको प्रेशर सपोर्ट के जरिए वो अपने स्पॉन्टेनियस ब्रेथ लेना शुरू करता है। ठीक है और अगर तो सर उसके अंदर इसमें हम चेक करेंगे सर, सॉरी टू कट यू, इसमें अगर हम चेक करेंगे कि अगर सर हमारा रेस्पिरेटरी रेट फिर भी 35 है और मैं सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा और इसका हार्ट रेट बढ़ रहा है और CO2 भी बढ़ रहा है और इसका सर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है मोर देन, और सर इसका एजिटेशन है, स्वेटिंग है इसको, और इसकी जो ना वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ रहा है, पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग पे चला गया है, तो देन वी शुड इंटुबेट अगेन। वो आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात मिस कर रहे हैं आप। जब SIMV पे जब डालते हैं तो SIMV के साथ जो प्रेशर सपोर्ट देते हैं, अगर वो रेट मिसाल के तौर पे आपने रखा हुआ है 12 का और अब उसका रेट आना शुरू हो गया है 30, इसका मतलब है कि पेशेंट इज नॉट रेडी फॉर एक्सट्यूबेशन। सही कह रहे हैं सर, सही। ठीक है आप ग्रेजुअली अगर उसका रेट कम करें और उसके जो पेशेंट ब्रेथ बहुत ज्यादा ना हो जाए तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है तो ये उसका होता है। और वो अभी उस क्वेश्चन पे अभी हम उसके बाद आएंगे कि ये अगर सारा कुछ किया है अब वो फेल होना शुरू हो गया है तो फेलियर का कैसे पता चलेगा, आप कोई और बताए, आसिम भाई बताएं। शमुना आज आपको मैं नहीं सवाल पूछ रहा, फेलियर के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर आपकी हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी हो। सेकेंडली ये कि अगर आपके रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स जो है उसमें आपकी डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 35। सेकेंडली अगर पेशेंट जो है, थर्डली ये होता है कि अगर आपका पेशेंट जो है वो बहुत हाईली इरिटेबल हो, और बस 3 बेसिकली चीजें होती हैं इसमें। मतलब जनरली वो अनवेल हो जाए ना, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आने शुरू हो जाए और रेस्पिरेटरी रेट मैकेनिकल मिनट वेंटिलेशन बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है तो आप उसको वापस ले जाएंगे, यू विल गो बैक। और यहाँ पे आसिफ भाई का वो रिच मैन एजिटेशन सेडेशन स्केल का भी जिक्र आ जाएगा। ठीक है आसिफ भाई। जी सर। देखें एग्जाम के अंदर ना आपने अपने आप को सियासतदान बनाना है। सियासतदान ना तो किसी बात पे हाँ कहते हैं ना किसी बात पे ना कहते हैं, तो आपने भी वाईवे में अपने लिए दोनों रास्ते ओपन करके रखने हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल अब आप अतीक भाई अभी आप ये गलती कर रहे थे, फिर मैं आपकी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपसे वो ब्लड प्रेशर का फिगर पूछ रहा है, जब ब्लड प्रेशर का फिगर वो नहीं पूछ रहा था तो आप सिर्फ अनस्टेबल का लफ्ज देख के आप जान छुड़ा लें। ठीक है आपको ये कहने की मोर देन कहना ये एक्स्ट्रा है, इट्स वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। ठीक है क्योंकि उसमें आप कोई नंबर गलत बोलेंगे फिर अगला पूछेगा कि अच्छा इस पे करेंगे, वो खामखा अपने आप को मुश्किल में न डाले। पेशेंट अनस्टेबल हो गया, इट कैन बी हाई और इट कैन बी लो। क्या हाई लो नहीं हो सकता ब्लड प्रेशर? लो भी हो सकता है सर। फिर आप क्यों अपने आप को मुश्किल, आप अनस्टेबल में दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। आपने अनस्टेबल का लफ्ज बोला, आपको मैंने क्या कहा था, कम खर्च बाला नशीन।
बिल्कुल सर, सही, हम बिल्कुल जितनी सही। जितनी वहां पर बोलेंगे बातें उतना वो आपको पकड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए वो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए जो ससुराल में कहा जाता है लड़कियों को जाके ना खामोशी इख्तियार करें, सबको पहले सुने, क्योंकि वो जितना बोलेंगी उनको उतना पकड़ा जाएगा, तो फिर उनको बोलने का वक्त आएगा, जब वाइवा पास हो जाए फिर जो मर्जी बोले, ठीक सर है। लड़कियों के लिए नहीं है सर, लड़कों के लिए भी ससुराल में लड़कों कम के लिए बोलना भी चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टी पीस होता है, जो टी पीस के जरिए करते हैं, उसके क्या प्लस माइनस होते हैं? टीपीस का प्लस ये है कि सर आपको इंट्यूबेशन दोबारा नहीं करनी पड़ती, आपके पास ऑलरेडी इंट्यूबेशन इन प्लेस होती है। और दूसरा हमारे पास एक वो होता है, वो एक तरफ से निकल रही होती है ऑक्सीजन एक दूसरी ये जगह से, आपका, ये भी आंसर अपने आपका मैं साइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। टी पीस का एक तरफ से पहला फायदा क्या वेंटिलेशन हो है? रही होती। नहीं 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 नहीं, टी पीस के जरिए आप सीपैप दे सकते हैं, हाँ ठीक है। टी पीस के जरिए आप सीपैप दे सकते हैं, सीपैप दे सकते हैं ना, उसके आगे वेल्व लगा हुआ होता है, बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। और तो उसका ट्रायल कितना होगा सर? जी, इजी टू टॉलरेट, इजी टू टॉलरेट है इजी टू basically, उसके टॉलरेट बाद होगा, ये हम फीचर दे सकते इजी टू हैं। टॉलरेट और होगा। थेरेपी जो टी पीस होता है उसमें वर्क ऑफ ब्रीथिंग कम होती है ना, एज कंपेयर टू अदर ब्रीथिंग सर्किट के। और उसमें हमें री इंटुबेशन, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ट्रायल फेलियर हो जाता है तो हमें री इंटुबेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पेशेंट ऑलरेडी इंटुबेट होता है, हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। ठीक है, तो और ये उसका सर टाइम क्या होगा जो टीपीस का मैक्सिमम? आसिम भाई ये मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं ख्याल के 1 to 2 आवर्स का होता है। 30 मिनट्स तक देखते हैं सर, 30 मिनट्स तक। ये इसका ना कोई फिक्स रूल नहीं है, ये आप अकॉर्डिंग टू द फिक्स रूल नहीं है, कंडीशन। लेकिन सर अमूमन सर 30 मिनट्स तक चलते हैं। यूजुअली तो सर हम जो टीपीस पे डालते थे पेशेंट को, लेकिन तो हम कभी वो कभी 3-4 घंटे भी टीपीस पे रख लेते हैं कि अगर हमें डर होता है कि पेशेंट खुदा ना देखिए मेरी बात सुने, ये जो आपने अभी जुमला बोला है ना कुरतुलैन, ये आप एग्जाम के अंदर ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ये करते हैं, हम लोग वो करते हैं। इट्स नॉट, ये आपको आपको कोई ना किसी जगह से आपको उसकी एविडेंस चाहिए होगी, ठीक है। ठीक है। यूजुअली जिस पेशेंट को हम टीपीस पे डालते हैं उसको तो हम जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स 1 आवर हम देखते हैं। अगर वो टैकीकार्डिक नहीं है, टैकीपनिक नहीं है, एरिथमियाज नहीं है, कोई हाइपरटेंशन नहीं हो रही, स्वेटिंग नहीं हो रही पेशेंट को, तो फिर हम जो है उसको जो है उसकी ईबीजीज करा लेते हैं। हम देखते हैं पीसीओ2 रिटेन तो नहीं कर रहा। अगर वो रिटेन कर रहा है और साइंस सब ये शो कर रहा है तो हम दोबारा उसको असल में देखें, कंटिन्यू करते हैं। इसका मैं आपको मेरे ख्याल से जो आंसर इसका अप्रोप्रिएट है वो ये है कि इसके लिए फिक्स रूल नहीं है, इसके लिए फिक्स रूल नहीं है। यू जस्ट चॉक आउट अ प्लान जिसमें आप ग्रेजुअली उसको टीपीस के ट्रायल्स देते हैं और आप उसको इंक्रीज ड्यूरेशन करते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हाफ एन आवर का ट्रायल उसने टॉलरेट किया है तो उसके बाद आप उसको अगले अगले दिन अगर आप उसको उस ट्रायल को मजीद बढ़ा लेते हैं और अगर वो ग्रेजुअली जब वो नहीं होता एग्जॉस्ट तो आप उसको एक्सट्यूबेट कर देते हैं। ये मैं अभी आर्टिकल खोला हुआ है, इसमें 2 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। Once the patient can manage 2 hours without problems, they are extubated. वैसे सर इस साल जब हमने कोविड आईसीयू किया था तो हम इस तरह करते थे। अभी मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, वहां पर आपने ये सब बातें नहीं बोलनी। ये वहां पर आप किसी किताब का या किसी आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं, जो कई जगहों पे जो प्रैक्टिकल चीजें हम कर रहे होते हैं ना आसिम भाई, वो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट इस वक्त ये बता रहा हूँ कि इस टाइम पे आपने सिर्फ एक एग्जाम के अंदर एक ड्रामा करके दिखाना है और वो ड्रामे के लिए कोशिश ये करें कि इतना अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सिंपल देखें ना, ये इट मेक्स लॉजिक ना कि ग्रेजुअली जब भी आप उसके ट्रायल्स को प्रोलॉन्ग करते हैं, जब वो उसको आप क्योंकि आपके पता होता है कि इसकी कंडीशन किस तरफ जा रही है, तो जब आपको लगता है कि इसके वाइट सेल काउंट बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इसके पैरामीटर्स बेहतर हो रहे हैं, इसकी सारी चीजें हो रही है, तो कोई भी पेशेंट को हम ओवरनाइट तक एक्सट्यूबेट नहीं करते ना। जो आईसीयू में इस किस्म के जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं या ऐसी कंडीशन में होते हैं, उनको हम ग्रेजुअली एक्सट्यूबेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो यही इसके अंदर आंसर होगा कि यू विल ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम फॉर इवन SIMV विद प्रेशर सपोर्ट या प्रेशर सपोर्ट पे करके या फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस जो आप ब्रीडिंग दे रहे हैं टीपीस के जरिए, ठीक है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल गो बैक, ठीक है। ये इसका होता है, ठीक है।
तो बाकी जो अतीक भाई ने बताया था कि उसके लिए आपके पास जब फाइनली जब आप एक्सटुबेट करने लगे तो उस टाइम पे आपके पास सारे गैजेट्स होने चाहिए री इंटुबेशन के, और कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आप उसको उस वक्त एक्सटुबेट करें देन व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर री इंटुबेशन, क्योंकि री इंटुबेशन के साथ पेशेंट की मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये है जी सारी बातें आपकी वीनिंग के मुतालिक। एनी अदर क्वेश्चन अबाउट वीनिंग? ठीक है, तो हम लोगों ने इंटुबेशन और वीनिंग के बारे में बात की है। कल हम लोगों ने ट्रिक्योस्टमी के बारे में कुछ बात की थी। एक उसका ना जो फेल्ड ट्रिक्योस्टमी का एल्गोरिथम था वो नहीं किया था, वो किसी को आता है? फहीम आप कुछ पार्टिसिपेट करो प्लीज। फेल्ड ट्रिक्योस्टमी में क्या करते हैं, सॉरी जो फ्लेड कह रहा हूँ, ब्लॉक ट्रिक्योस्टमी में। तो उसमें इनिशियली तो सबसे पहले हम उसमें जो है वो सक्शन कैथेटर डालेंगे, जो फर्स्ट जो उसका स्टेप है। हम्म। और उसके बाद अगर उससे भी रिलीफ नहीं होता तो सेकेंडली जो इनर ट्यूब है उसको निकालते हैं। हम्म। और जो थर्ड स्टेप जो है फिर उसका जो है वो बैलून जो कफ है वो डिफ्लेट करते हैं। और फोर्थ जो है फिर वो हम निकाल के ईटीटी डालना चाहते हैं जो ओरल कैविटी से। मेरे ख्याल में फोर्थ स्टेप्स है। कोई इसका बेहतर इसको इम्प्रूव करना चाहेगा? क्योंकि मुझे याद पड़ा, मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं आता, लेकिन इसका एल्गोरिथम होता है कोई ना? जी सर, यही है ना सर, पहले सबसे पहले आपने जो इसका है सक्शन सर कैथेटर एल्गोरिथम है। डालना। एक मिनट प्लीज, सॉरी अतीक भाई, अगर कोई एल्गोरिथम मेरी नजर में से गुजरा था किसी जमाने में, अगर आपके पास है तो बताइए उसको देख के, वरना जो ये बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि इसका एल्गोरिथम भी है। सर मैं एल्गोरिथम यही सेम है। मैं शेयर कर देता हूँ सबको। ओके, दोबारा से एक दफा रिवाइज करें आसिम भाई, फिर दोबारा से बोले, मैं क्योंकि इधर कंसंट्रेट नहीं कर रहा था। जी सर, जो इनिशियली है सबसे पहले हम इसको सक्शन कैथेटर डालेंगे। और उससे अगर रिलीव हो जाती जो ऑब्स्ट्रक्शन है तो सही है, वरना फिर सेकंड स्टेप पे इसका जो है वो इनर ट्यूब जो है वो निकालेंगे हम। और उससे भी अगर रिलीव नहीं होती तो थर्ड स्टेप में जो है इसका जो है वो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का जो वो है जो कफ है उसको डिफ्लेट करेंगे। और ठीक है, उससे भी नहीं होती तो फिर हम उसको निकाल के और जो है इंट्यूबेट कर देंगे बाय ओरल कैविटी। इंट्यूबेट कर देंगे? जी सर। इंट्यूबेट कर देंगे या उसी स्टोमा में से डालेंगे? स्ट्रोमा में अगर है प्रोविजन है तो डाल सकते हैं, वरना वो इंट्यूबेट करने का लिखा होता है। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक बात बताइए कि जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद बैग मास्क है उसका कहीं जिक्र है? पॉजिटिव प्रेशर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने अभी एमसीक्यूज के पढ़ रहा था ना, तो उसमें ये था स्टेप्स, 4 स्टेप्स जो लिखे थे। मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिला कहीं तो मैं शेयर करता हूँ। सर ये पेज ये सर जो एक आर्टिकल है उसके अंदर इसका पूरा एल्गोरिथम दिया हुआ है सर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब हाँ, का। ये मैंने पढ़ा था किसी जमाने में। मुझे एक मिनट रुके, मेरे ख्याल वो वेंटिलेशन के उसमें है या एयरवे में है? नहीं सर ट्रैकियोस्टमी में, सर ट्रैकियोस्टमी में है सर, ट्रैकियोस्टमी में। एक सर एक बुक है अपडेट 2012 वाली सर, उसमें 2204 नंबर पेज पे। आप बताएं इसके अंदर क्या उन्होंने कोई जो बातें उन्होंने बताई है, इसके अलावा कोई बात है? सर अगर आप, इसने बताया हुआ कि अगर आपका एक तो सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प है ना इसमें सर, ABC। हाँ, ठीक है सर, ये सर ये बताया हुआ इन्होंने। इसमें सर उन्होंने बताया कि अगर ट्रिकोस्टमी ट्यूब डिसलॉज है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखनी है आपने, हाई रेस्पिरेटरी रेट देखना है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी है आपने। और अगर आपका टाइटल वॉल्यूम जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, और आपका लॉस ऑफ इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस हो रहा है, या आपकी जो नहीं है इसकी जो वेव फॉर्म के अंदर जो सीसा टूथ वाली अपीयरेंस आ रही है, या फिर सर्जिकल एम्फेजिमा है, तो आप जो है ना कॉल फॉर कंसल्टेंट को कॉल करोगे, और मॉनिटर को अटैच करोगे, और एनेस्थेटिस्ट ऑन द साइड जो है ना वो आके चेक करेगा, देखेगा इसको। ठीक है सर।
और अगर पेशेंट जो है ना उसको इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो वेट फॉर दी ENT कंसल्टेंट। ठीक है, अगर इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है तो चेक करेंगे कि ट्रैकियोस्टमी ट्यूब कौन सी है, सर्जिकल है या परक्यूटेनियस है। अगर सर्जिकल है तो सर उसमें ना वी विल चेक इट आउट के इसका फ्लैप उड़ा हुआ है या फ्लैप है इसका, या इसका जो ना इसको ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को रिमूव कर लें और सूचर को जो ना ओपन करें और इसके ना री इंसर्ट करने की कोशिश करें, और फिर इसके बाद E2CO2 को चेक करें वेव फॉर्म के साथ और कंसल्टेंट को वो कर ले, फॉलो कर ले सर। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये अभी मैंने भी खोल लिया है। आसिम भाई, जो आपने बताया था ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अतीक भाई, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है। ये सर ये सही कह रहे हैं सर। इट इज़ टू मच डिटेल। आपने कैथेटर का वो डाला, सक्शन कैथेटर डाला है, अगर वो उससे हो गया है तो आप उसको डिफ्लेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगले स्टेप में आप रिमूव करेंगे। यही चीज़ लिखी हुई है। और उसके अंदर जो दूसरी चीज़ है ना, उसके अंदर दोनों ऑप्शंस है, ठीक है। उसके अंदर जो आसिम भाई आपने बताया था ना ओरल इंट्यूबेशन, तो ओरल इंट्यूबेशन भी है और स्टोमक इंट्यूबेशन भी है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आपके लिए जो भी पॉसिबल है आप वो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। वो ये जो है ना, ये ट्रैकियोस्टमी के आर्टिकल में है। आई विल जस्ट शेयर इट। सर शेयर करें सर, ये बड़ा सही दफा पिछले दवाई में पूछा गया था हमसे सर। हाँ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ ही एक और भी सिनेरियो कर लेते हैं कि जो होता है एयरवे की जो फायर है उसको कैसे मैनेज करते हैं। सर एक सर जिशान मैं बोलूं, एक तो सर जो एयरवे फायर है या तो एयरवे के अंदर लगी है, एक उसके प्रोटोकॉल है। एक जो ना या जो मतलब पूरी बॉडी के ऊपर लगी है उसका प्रोटोकॉल है। जो एयरवे के अंदर जो ना लेजर आप ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर अगर वो है तो सबसे पहले तो आपने सर ऑक्सीजन ऑफ करनी है और रिमूव दी एंडोट्रेकियल ट्यूब आपने रिमूव करना है। इसके बाद फिर आगे बाकी चीजें चेक करनी है और इसको दोबारा मास्क लगाना है। नहीं, अब आपने देखे ना, एक सेकंड मेरी बात सुने। अगर वो आपसे एयरवे, अब वो आपको ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो ये सिनेरियो होगा कि एयरवे की लेजर सर्जरी हो रही है और सडनली आपको एक फ्लेम आया नजर, व्हाट विल यू डू? तो ये जो आपने पहली बात शुरू की है ये भी यूजलेस है। नहीं सर, वो Call तो मैं for सर help and inform the surgeon. कॉल फॉर वो का सर्जन को तो खैर सबसे पहले सर्जन को ही पता चलेगा, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या है? सर पहले ऑक्सीजन को पहले बंद करेंगे, ओके, ऑक्सीजन को, और सर इसके बाद एक्सटूबेट करेंगे। एक्सटूबेशन के बाद सर, एक्सटूबेट करने के बाद सर इसको हम दोबारा उसको मास्क रखेंगे ताकि जो ना पेशेंट डिसाइड कर रहा है तो उसको वो कर लें, ठीक है। और उसके बाद इसको मजीद फर्दर जो ना रखेंगे। जब पेशेंट देख लेंगे कि वो है तो इसके बाद जो है ना सर दोबारा रीएक्टिवेट करेंगे और ताकि पेशेंट डिसाइड ना हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर वो जमील मौजूद है। जमील, वो क्या था 4E जो थे? एक्सटिंग्विश, हाँ, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे ना सर, जो ऑक्सीजन उसको एलिमिनेट और करेंगे। आप ऑक्सीजन बंद कर देंगे, ठीक है। जी हाँ जी, ये जो डॉक्टर साहब ने पहले बताया ना, यानी कि वो स्टेप पहले लेने हैं आपने, यानी कि आप सर्जन को तो पता होगा, ठीक है, कॉल पर हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आपने एलिमिनेट करना है। दूसरा है कि जो दूसरा है वो एक्सटिंग्विश है कि आपने जो है ना उस पर या तो नॉर्मल सलाइन का जो फ्लैश सिरिंज के साथ 20 cc के साथ, ठीक है, वो आपने करना है। और फायर को जो है ना आपने एक्सटिंग्विश जो है ना वो करनी है। तीसरी है आपने एवेलुएट करना है। फिर उसके बाद जो है ना तीसरा है फिर कि आपने एक्सटूबेट करना है, ठीक है। एक्सटूबेट करने के बाद आपने जो है ना फिर चौथा है एवेलुएट करना है कि एयरवे की इंजरी कितनी है, बर्न है अगर, ठीक है, डीमा उसको आपको चांसेस हैं कि इसका डीमा डेवलप होगा, री इंटूबेशन जरूरत पड़ेगी, तो आपने इसको पहले ही इन टाइम जो ना आपने री इंटूबेट जमील, एक दफा दोबारा से बताओ, आपने थोड़ा सा इसको जल्दी बता दिया है। आपने सबसे पहले क्या किया है? एलिमिनेट सर, पहला ई जो है ना एलिमिनेट, डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा और आप ऑक्सीजन, ठीक है, ऑल एनेस्थेटिक गैसेस, ठीक है, डिस्कनेक्ट द सर्किट। इसमें स्पेशली ऑक्सीजन की FiO2 ज्यादा और जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों ही
डेंजरस है। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप FiO2 जो है ना 0.3 या 30% जो है ना रखिए इसके ऊपर, ताकि मिनिमम हाँ जी आप सब टीवा स्टार्ट कर लें और नाइट्रस जो है ना वो अवॉइड कर लें। और दूसरा सर के एक्सटिंग्विश, ठीक है, आपने से ये दूसरा इसी है कि आपने जो है ना वो 20 cc सिरिंज नॉर्मल सिरिंज से जो है ना, जी सर आपने वो जो है ना उस फायर एरिया पे जो है लगानी है। तीसरा ही सर एक्सट्रूबेट है, आपने वो ट्यूब जो है ना वो आप निकाल देनी क्योंकि बर्न हो गई हुई है, ठीक है, किंक है या डेफिनेटली से ऑक्सीजनेशन तो नहीं होगी आपकी। और चौथा है फिर है कि एवेलुएट करना है उस एयरवे को आपने कि उस बर्न से कितना डैमेज हुआ एयरवे आपका जो है ना, वो थ्रू होगा थ्रू ब्रोंकोस्कोपी, थ्रू ब्रोंकोस्कोपी ETT डाल के दोबारा आप उसके अंदर वो डिपेंड करेगा, उसके लिए आपकी बेसिकली इट विल बी डन बाय द ENT सर्जन, और उसके अंदर वो बेसिकली यूज हो सकता है आपका फ्लेक्सिबल भी या वो भी। हाँ जी। तो इसमें अच्छा ये तो हो गया ना कि जब हो गई है, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीजें? प्रिवेंशन में तो सर एक यही है ना कि लो FiO2 देंगे इसको, और एक तो ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं यूज करेंगे, और इसके अलावा जो है सर्जन की तरफ से होगा कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स करेंगे रिगार्डिंग जो नहीं है, जो लेजर वगैरह ऐसी जगह इस्तेमाल करेंगे। और आप अपने बारे में अपनी चीजों का भी तो बता दीजिए ना, आप सर्जन की चीजों की तरफ मेटालिक जो ट्यूब है सर उसको जो है वो लेजर ट्यूब यूज करेंगे आप, और मतलब वो मेटालिक वगैरह अगर उसने पूछना होगा ना आप ये इतना अगर जुमला बोल देते हैं ना, लेजर रेजिस्टेंट ट्यूब, वो उसमें आपसे वो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सी होगी, लेकिन अगर आप लेजर रेजिस्टेंट ट्यूब का लफ्ज यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप से जो उसके जो है बैलून, उसके अंदर आप सेलाइन यूज करें, या उसके अंदर आप कोई कलर भी यूज कर सकते हैं ताकि वो अगर रप्चर हो जाए तो आपको पता चल जाए कि लेजर से रप्चर हो गया, ठीक है। और दूसरी ये कि आपका पास हेड साइड पे आपका सेलाइन फिल आपके पास सिरिंजेस होनी चाहिए, ठीक है, 2 सिरिंजेस 20 ml की सिरिंजेस होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए। तो ये अब आप देखें ना, आप सर्जिकल चीजों पे चले गए, सर्जिकल चीजें बाद में है, अपनी चीजों पे पहले तवज्जो दें, ठीक है, अपनी चीजों पे तवज्जो दें, और उसके पेशेंट के आपके उसके साथ क्लोज कम्युनिकेशन हो। एक टेक्निक आप और भी यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट एपनिक टेक्निक, ठीक है, इंटरमीडिएट एपनिक टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं कि फॉर दैट ड्यूरेशन व्हेन दे आर गिविंग द बर्स्ट you can before that you can oxygenate the patient, और उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए एपनिक भी कर सकते हैं ताकि ये आप रिस्क ही खत्म कर दें कि वहां पे ऑक्सीजन या जा रही हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन टेक्निक जो आप बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक हमारा एयरवे से रिलेटेड हमारा ये भी सिनेरियो हो गया छोटा सा। और अच्छा, जो एक पेशेंट के अंदर वैसे तो ये क्या नाम है इसका, उसमें स्ट्राइडर के उसमें आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में, लेकिन अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो ये कि हाँ इंट्रा ऑपरेटिवली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का आपको कैसे पता चलेगा? प्रेशर बढ़ेगा सर, और पेशेंट डिसैट होगा, और इसके अलावा से इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी सर, वो फॉरन एक्सपोनेंशियली सर डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा सर पेशेंट जो ना वो ब्लू सैनोज हो जाएगा सर। नहीं, आपने एन टाइडल CO2 क्यों कम हो जाएगी सर? जब वो ब्रीथ ही नहीं करेगा सही प्रॉपर तरीके से, एयर में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो सर कैसे इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड आएगी सर? ओके, अगर जो है वो रीजनल एनेस्थीसिया में हो रहा है और वे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो आपको कैसे पता चलेगा सर? वो स्ट्राइडर होगा ना सर, और इसके अलावा पेशेंट टेकेप्निक होगा, एजिटेशन होगी, स्वेटिंग होगी, इसके अलावा जो ना पेशेंट आपको वो बात ही नहीं करेगा। how can you monitor ventilation in a patient in whom you have given regional anesthesia? आप वेंटिलेशन उसकी किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं?
सर उसके साथ तो हम कभी बात भी कर रहे होते हैं, उसके सैचुरेशन नहीं, ये देख रहे आंसर होते नहीं हैं है, उसका। ये आंसर नहीं है। वेंटिलेशन, ये सैचुरेशन से आप ऑक्सीजनेशन देखते हैं, वेंटिलेशन नहीं देखते। तो वेंटिलेशन के लिए वो एंड टाइडल CO2 विद नेजल कैनुला अवेलेबल होते हैं, वो आमतौर पे लगाते हैं। वो भी कर सकते और हैं, या उसको सिंपल हाँ, फेस मास्क जी में सर, भी आप जो डिजिटल एंड है ना, वो आप अटैच कर सकते हैं बिल्कुल एंड टाइडल का। एंटाइडल तो उससे CO2 आपको एक इनडायरेक्टली आप मॉनिटर करते रहते हैं पेशेंट का, कि पेशेंट को अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो आपको क्योंकि देखें, याद रखें, सैचुरेशन विल फॉल आफ्टर सम टाइम, मगर वेंटिलेशन जैसे ही पेशेंट एपनिक होगा फौरन आपको एंड टाइडल CO2 से पता चल जाएगा। ठीक है, तो एंड टाइडल CO2 से आप मॉनिटर कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग रीजनल एनेस्थीसिया। अगर आपके पास एंड टाइडल CO2 मॉनिटरिंग अवेलेबल है, तो आप वही जो पोर्ट है वो आप उसके फेस मास्क के साथ उसके साथ अटैच कर दें एंड यू कैन हैव द ट्रेंड। वो वैल्यू एग्जैक्टली इसके वही साथ होगी। जी पेशेंट खुद भी बताएगा ना सर, पेशेंट खुद भी बताएगा कि मुझे कुछ हो रहा है। हाँ, दैट इज, वो देखिए वो तो वो जरूरी वो थोड़ी, ठीक है, हाँ जी, वो ये ठीक जब, है। अगर साथ अगर आपने थोड़ी सी सजेशन उसको दी हुई है, प्रोपोफॉल अगर चल रहा है, ठीक है, तो और कैसे तो पता चलेगा? ना स्लीप है, क्या आप बेहतर है ये, कि वो जो एंड टाइडल की जो ट्यूब है ना, उसको मास्क के साथ अंदर की तरफ से टेप लगा के रखा दें, क्योंकि वो डेफिनेटली एग्जैक्ट एंड टाइडल ग्राफ तो नहीं बनेगा, मगर ये है कि जो जब वो एक्सेल करेगा तो साथ CO2 भी जो है ना साथ, वो थोड़ी सी आपको उसका ग्राफ मिलता रहेगा। वो टिपिकल एंड टाइडल वाला ग्राफ नहीं बनेगा, मगर आप उससे उसकी रेस्पिरेशन जो है ना मॉनिटर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसमें ये पॉइंट है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का आपको इस तरह हो सकता है, वैसे वो हम लोग डिटेल से फिर करेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को। तो मेरे ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो वाइवे वाले लोग हैं वो प्लीज़ अगेन आई विल से कि छोटे छोटे जिस तरह वो होता है ना, वो डायबिटिक पेशेंट्स को छोटा छोटा मील लेना होता है, तो वो वाइवे के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो डेली डिस्कस करते रहें। और जब मैं सुबह ग्रुप में वो क्वेश्चन भेजूँ तो प्लीज़ आंसर किया करें, वो आप लोगों के लिए ही होता है। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, उसी का कोई जवाब नहीं देता, उसके बाद फिर मैं भी सो जाता हूँ। तो आप लोग अगर सवाल पूछते रहेंगे आपस में और एक दूसरे की करेक्शन करें, वहाँ पे सिर्फ मैं करेक्शन के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ, आप सब लोग एक दूसरे की करेक्शन करें, एक दूसरे से सवाल पूछें, जिसके दिमाग में जो वाइवा, देखें यही है वाइवा, याद रखें बात के वाइवे के लिए बैठ के कोई कहे कि मैं बैठ के किताबें खोल के रटे मारूंगा, तो कोई वाइवे में फिर फेल ना हो। ठीक है, वाइवे के लिए डेली आप लोग 5 से 10 छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो क्योंकि इस वक्त अब फिर वाइवे के लोग आ गए हैं, जिन लोगों को मैं तरतीब से बताता रहता हूँ, उनको लिए भी मैसेज ये है कि देखें, रिटर्न पास हो जाता है वाइवे के अंदर, जब तक आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक आप पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो रिटर्न में कम तैयारी के साथ बंदा पास हो सकता है, तुक्के लगा के, पुराने क्वेश्चंस के रट्टे मार के। तो वाइवे में आप नहीं किसी को उल्लू बना सकते, एग्जामिनर्स इतने पागल नहीं है। आपको अगर नहीं आता होगा ना, वो आपकी गर्दन दबोच लेंगे और फिर आप उनको चाहे जितना मर्जी बुरा भला कहें। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे तौबा करता हूँ मैं जिनको देख के, जो मुझे बताए मजे से बता रहे, किसी ने मुझे बताया कि मेरी 3rd साइकिल है 7th अटेम्प्ट, मैंने उसकी मैं एकदम तो मुझे उनकी बात समझ नहीं आया कि ये 3rd साइकिल इसने जो बोला है इसका मतलब क्या है। तो बाद में पता लगा कि जी 3rd साइकिल की 1st अटेम्प्ट है वाइवे की। मैं तो तौबा की, या अल्लाह बचा ले तू सब लोगों को इस चीज से। तो बताने का मकसद ये है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ओनली स्कीमेटिक, यू जस्ट हैव टू बी वेरी लॉजिकल। और आप तरतीब से छोटे क्वेश्चन, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैं आज आपको 1-2 टॉपिक्स बताता हूँ। एक टॉपिक है छोटा सा PCA का, ठीक है, उसके बाद टीम्स है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, एक एक्यूट पेन सर्विस है, एक क्रॉनिक पेन सर्विस है, एक जो है ना रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, एक कोड ब्लू की टीम है। ठीक है, उसके बाद एक क्रिटिकल केयर आउटरीच टीम है। आप अपने दिमाग के अंदर ये 6 टीम्स को रिवाइज करें। और ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो इसके लिए कोई ये ना मुझसे सवाल पूछे कहाँ से पढ़ना है, आप इंटरनेट पे खोलें, आपको 2-5-6 बातें पता चलती हैं, वही सवाल। मजे की बात है, इन सारी टीम्स में बहुत सारी चीजें कॉमन है। उसमें फार्मासिस्ट तकरीबन हर टीम में होगा, इसके अंदर ट्रेन नर्स तकरीबन हर टीम में होगी, और एनेस्थेटिस्ट या जो पेन स्पेशलिस्ट है वो हर टीम में होगा। जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो एक्टिवेट करता है बेसिकली जो नर्सिंग स्टाफ है, और उसके अंदर वो किस बेस पे होता है, अर्ली वार्निंग स्कोर्स पे। तो अर्ली वार्निंग स्कोर्स की बेस पे वो रैपिड रिस्पॉन्स टीम को एक्टिवेट करता है, और उसका पर्पस जो है, उसका पर्पस होता है कि वो कोड ब्लू ना होने दे, वो कार्डियक अरेस्ट ना होने दे। ठीक है,
तो ये वो तो इसमें वो बाकी और क्या फार्मासिस्ट होगा, उसने दवाइयाँ देनी होंगी जो सर एक और भी है सर, ट्रॉमा टीम। हाँ ट्रॉमा टीम, ये मुझे बता दें। तो इसमें जो है ना, ये रैपिड रिस्पांस टीम का काम मकसद क्या है कि वो कार्डियक अरेस्ट ना होने दे। वो क्या करेगा, वो करके पिक करेगा अर्ली वार्निंग साइंस पे, कोई रिस्पिरेटरी रेट कम है, ज्यादा है, हार्ट रेट ज्यादा है, कम है, कॉन्शियस लेवल डिटेरेट है, उस पर वो एक्टिवेट होगा और उसका पर्पस होगा कि वो रेलिवेंट टीम को रेलिवेंट टीम को इन्वॉल्व करे। उसके अंदर वही होगी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन की अप्रोच होगी, वो एबीजीज कर सकते हैं और वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करेंगे। जिस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की होगी जरूरत, उसके अंदर आरटी भी होगा और उसके बाद फिर वो अगर आईसीयू की जरूरत है तो उसको आईसीयू में, अब बेसिकली आईसीयू की अच्छे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यूजुअली इसके अंदर आईसीयू का डॉक्टर होता है, ठीक है। जो रैपिड रिस्पांस टीम होती है उसमें एनेस्थेटिस्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में एनेस्थीसिया के ही सर पे सारी चीजें होती हैं, तो ये तो एक रैपिड रिस्पांस टीम है। कोड ब्लू टीम के अंदर बाकी सारे जो मेंबर्स के अलावा आपका एक ऑब्जर्वर होगा, एक आपका जो है वो ड्रग्स पे होगा, 2 लोग आपकी वेंटिलेशन और वो कर रहे होंगे कंप्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको पोस्ट रिसेसिटेशन केयर में के हिसाब से वो करना होता है। तो वो एक अलग अलग करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक बर्ड आई व्यू बता रहा हूँ। जो आपकी एक्यूट पेन सर्विस है या क्रॉनिक पेन सर्विस है, उसका सिस्टम यही है कि कोई पेशेंट इमरजेंसी में या पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिसमें एपिड्यूरल लगा हुआ है या जिसको पीसीए चल रहा है, तो उसको एक्यूट पेन सर्विस का जो डॉक्टर है वो उसको एवेलुएट करेगा और एवेलुएट करके वो उसके अंदर मेडिसिन को वो ऊपर कम ज़्यादा करेगा या फिर वो उसके अंदर कोई नई दवाइयों का एडिशन करेगा। जो रेट है उसको पीसीए को मॉनिटर करेगा। वो हम डिटेल से कर लेंगे पीसीए के बारे में। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे, आज मैंने सुबह इन लोगों से टॉपिक पूछा था प्रायंस डिजीज, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रूज़फील्ड जैकब्स डिजीज क्या होती है। तो एक छोटा सा सिनेरियो के तौर पे आप इस तरह करें, इंशाल्लाह लगे रहें और तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। ईशान जी सर जी, ये मुझे बताएं सर, कल के टॉपिक ये 4-5 टॉपिक हो गए या कोई और भी साथ शामिल होगा? यार अब ये जो है एयरवे से रिलेटेड और क्या चीज रहती है सर? एयर वेंटिलेशन में मैकेनिकल वेंटिलेशन ही करा दे सर, एआरडीएस मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये सर ये चले अभी ना एयरवे को सोचे कि मुझे सोचने कौन सी कोई टॉपिक रह गया एयरवे से रिलेटेड। इक्विपमेंट के बारे में देख लिया हमने, कुछ एयरवे के सिनेरियोस देख लिए हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं कुछ, ठीक है। आई विल लेट यू नो। और सर ये थोड़ा सा ईएनटी के और फॉरेन बॉडी भी इसके साथ ही बंदा कर ले, ईएनटी और फॉरेन बॉडी, ठीक है। ये यही सही है, फॉरेन बॉडी कर लेते हैं। एक्यूट एयरवे, एक्यूट जो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, स्ट्राइडर, उसकी डीडी सर वो भी है। और बच्चों वाले नहीं है एक्यूट एपिलेटोरटिस और ग्रुप वही स्ट्राइडर की डीडी है ना, स्ट्राइडर की डीडी। ठीक है, कल ये कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है, ओके सर, जज़ाकल्लाह। कोई किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आज वेलकम था शमूना के लिए, शमूना ने आज हमें इज्जत बख्शी है। शमूना हमारी कुलीग है और शमूना ने हमें इज्जत बख्शी है कि आज हमें ज्वाइन की, ठीक है सर। यार जमील बहुत कम बोला सर, जमील साहब आपने बोलने ही नहीं दिया आज, तो आपने क्वेश्चंस में तबाही मचा दी है। लेकिन आपकी अभी ब्रेकें टाइट करनी है, फिक्र ना करें, आपकी हो जाएगी ब्रेक टाइट। सर आज कचरे, आज आपने कचरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया सर। नहीं मैं उस क्वेश्चन को हज़फ करता हूँ। वो एक्चुअली वो सारा गुस्सा आपका था, वो निकल गया इन लोगों के ऊपर। वो गुस्सा असल में आपके ऊपर था। वो सो कचरे ने कोई काम नहीं दिखाया सर आज। चले जी, ओके सर। देखिए जब बंदा एक्सटेम्पोर बोलता है ना, तो इमरान खान की तरह कोई गलतियां कर सकता है। मैं कौन सा कोई चीजें प्रिपेयर करके बोलता हूँ, भाई माफ कर दिया करे मुझे, ठीक है। ओके, ओके सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।